Class 12th, Subject Accountancy, Chapter number 1, Financial Statements Analysis. It is lecture number 5. It is now D number, cash and cash equivalents. Cash and cash equivalents shall be classified as C. First number, balance with banks. Second number, checks, drafts on hand. Next number, cash on hand. Next number, others, specified nature. Interpretation, investments having, इसका interpretation है बेटे, investments having maturity period of more than 3 months but not exceeding 12 months from the date of acquisition shall be shown as current investments. बैलेंस शीट डेट इज इररेलेवेंट, यानी कि हमें बैलेंस शीट की डेट से कोई लेना देना नहीं रहेगा. सिर्फ आपने ये देखना है कि मैच्योरिटी पीरियड शुड बी मोर देन 3 months बट नॉट एक्सीडिंग 12 months. 3 महीना से ज़्यादा और 12 महीना से कम में. इंटरप्रिटेशन है ये, लिसन. इन्वेस्टमेंट्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 3 months but not exceeding 12 months from the date of acquisition shall be shown as current investments, और जिसमें कि आपकी बैलेंस शीट डेट इज irrelevant. And now point number 2, earmarked balances with bank. For example, for unpaid dividend shall be separately stated. लिसन, ये भी आपका नॉट टू बी इवेल्युएटेड है, बट बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ बैलेंस शीट सो यू शुड नो कि वेयर द आइटम्स इज टू बी रिटन. सेकेंड नंबर, ईयर मार्क बैलेंसेज विद बैंक. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अनपेड डिविडेंड शैल बी सेपरेटली स्टेटेड नॉट टू बी इवेल्युएटेड. ये इवेल्युएटेड नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा. थर्ड नंबर, balances with banks to the extent held as margin money or security against the borrowings, guarantees, other commitments shall be disclosed separately, not to be evaluated. Listen, second number, not to be evaluated means ये क्वेश्चन आपसे अकाउंट्स में ट्रीटमेंट क्या होगा नहीं पूछा जाएगा. ओनली इट कैन बी आस्क्ड वेयर विल यू राइट दीज अमाउंट्स. Point number 2 and point number 3. Now see, move on to now point number 4. Bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed separately under this head. बैंक डिपॉजिट जो 12 महीना से ज्यादा की जिनकी मैच्योरिटी है इस हेड में अलग से दिखाए जाएंगे. बट लिसन अगेन, दे विल नॉट टू बी इवेल्युएटेड, उनको इवेल्युएशन नहीं मिलेगा. पॉइंट नंबर 4 विल नॉट बी इवेल्युएटेड. नाउ मूव ऑन टू ई नंबर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. दीज आर द लोन्स एंड एडवांसेस which are expected to be realized within 12 months from the date of balance sheet or within the operating cycle of a business. Again listen, I have started E number, short term loans and advances. These are the loans and advances which are expected to be realized within 12 months from the date of balance sheet or within the operating cycle of the business. F number, other current assets, specify nature. This is an all inclusive heading which incorporates current assets that do not fit into any other asset categories such as prepaid expenses, dividend receivable, interest accrued on investments, advance tax and unamortized expenses
to be written off within 12 months from the date of balance sheet. Other current assets specify nature. Listen, दिस इज ऑल इन, ये सारी इंक्लूसिव हेडिंग है बेटे, इसमें चीजें कई सारी इंक्लूड हैं. विच इनकॉर्पोरेट्स करंट एसेट्स, जो कि बताती है आपको अबाउट करंट एसेट्स दैट डू नॉट फिट इनटू एनी अदर एसेट कैटेगरीज, जो कि और कैटेगरीज में फिट नहीं होती. ओसीए में क्या क्या आएगा आपका, देखिए अदर करंट एसेट्स में आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस. डिविडेंड रिसीवेबल का मतलब है वो डिविडेंड जो मुझे अभी मिलना है, ये डिविडेंड मेरी इनकम है और अभी आउटस्टैंडिंग है. Interest accrued on investments, I have to receive. Interest accrued on investments, advance tax and unamortized expenses to be written off within 12 months from the date of balance sheet. Explanation of contingent liabilities and commitment to the extent not provided for. अब ये भी देखिए आपका नॉट टू बी इवेल्युएटेड है. कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट का जो एक एक्सप्लेनेशन है, नाउ दैट विल बी स्टार्टेड. कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज हैं, आर द लाइबिलिटीज विच हैव नॉट अराइजन, जो कि अभी हुई ही नहीं. व्हेन आई डिस्कस अबाउट करंट लाइबिलिटीज, इट इज वेरी करेक्ट कि करंट एसेट्स भी होती हैं. कंटिजेंट एसेट, नॉट करंट, कंटिजेंट एसेट्स, कंटिजेंट एसेट्स भी होती है. कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज विच हैव नॉट अराइजन but may arise upon the happening of a certain event. देखिए कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब है वो लाइबिलिटी जो अचानक से अराइज हो गई. अब ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. इन अदर वर्ड्स द लाइबिलिटी इटसेल्फ इज सर्टेन. इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द पेमेंट ऑफ मनी. इफ इट इज अ लाइबिलिटी, मुझे पैसा देना है. इफ इट इज कंटिजेंट एसेट, तो मुझे पैसा मिलेगा. यानी कि देखिए क्या लिखा है इसमें कि इट इज अ लाइबिलिटी जिसमें मुझे पैसा देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना पड़ सकता. नहीं भी देना कब पड़ेगा, व्हेन द लाइबिलिटी इज नॉट प्रूवन ऑफ माइन. जब वो लाइबिलिटी सिद्ध नहीं हुई कि वो मेरी है, तो मुझे क्यों पैसा देना रहेगा. द अमाउंट ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज इज नेवर शोन इन द लाइबिलिटी साइड. These are always stated in the notes to accounts below the balance sheet. Contingent liabilities आपको हमेशा मिलेंगी below the balance sheet. Balance sheet के नीचे footnotes में मिलेगी. Contingent liabilities shall be classified as first number claim against the company not acknowledged as debt. ये वो क्लेम है जिनको हमने ये नहीं बोला है अभी कि वो अब हमें मिलना ही नहीं एज डेप्ट, हमने उनको डेप्ट माना ही नहीं है. सेकेंड नंबर, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट. देखिए बिल इन क्लास 11 यू माइट हैव डन डेफिनेटली बिल्स, इट इज द मैटर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज व्हेन बीआर इज डिस्काउंटेड, बट इट इज नॉट ड्यू फॉर पेमेंट. ड्यू पेमेंट के लिए तब होगा जितना समय के लिए उन्होंने सामान को 2 महीना 3 महीना के लिए सेल किया है. मतलब वो अभी समय आया नहीं है, बट द बिल हैज बीन डिस्काउंटेड और वो अब कंटिजेंट लाइबिलिटी में है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द ड्रॉई, वो पैसा पे करेगा या नहीं करेगा. इट लाइज इन कंटिजेंट लाइबिलिटीज पार्ट. सेकेंड नंबर, bills receivable discounted from the bank but not yet due for the payment. Third number, proposed dividend for the current year. Fourth number, guarantees given by the company. Fifth number, other money for which the company is contingently liable. Commitments. कमिटमेंट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट. देखिए कमिटमेंट तो यूं ही माना जाए तो एक एग्रीमेंट ही है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम. पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना है एक सर्टेन समय पर करना है फ्यूचर में, अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस. यानी कि वादा है वो समय पर उस वक्त पर जो भी हम करेंगे दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. इट लाइज इन द पार्ट ऑफ कमिटमेंट. कमिटमेंट्स शैल बी क्लासिफाइड एज, सी नाउ. First number, estimated amount of contracts remaining to be
executed on capital account and not provided for. Second number, uncalled liability on shares and other investments, partly paid if the company holds partly paid. देखिए partly paid shares वो होते हैं जिनमें हमने कुछ का पेमेंट कर दिया है, थोड़े से पैसे का पेमेंट कर दिया है, या यूं कहिए कि थोड़ा सा पैसा ही अभी कंपनी ने हमसे मांगा है. Of other companies as investment, the uncalled amount on these shares is a commitment. Now listen, जो पैसा उन्होंने नहीं मांगा वो कमिटमेंट में है, यानी कि it is the commitment done by shareholder that he will pay the money. It is the of other companies as investment, the uncalled amount on these shares is a commitment, as it will have to be paid when called. Third number, other commitment, it will again listen, the nature will be specified, such as arrears of dividend. Listen, arrears of dividend वो चीज है बेटे जो हमें अभी शेयर होल्डर को देना बाकी है, ये उसकी इनकम है, शेयर होल्डर की इनकम है और कंपनी का एक्सपेंस है. एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो देखिए यहाँ पे जो अभी बकाया पैसा देना बाकी है, दैट इज ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. लिसन टू योर होमवर्क सॉल्यूशन नाउ, इट ऑफ लेक्चर नंबर 4. लेक्चर नंबर 4 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था अब उसको ध्यान से सुनिएगा. आंसर नंबर 13. सी, टुडे आई एम नॉट रीडिंग क्वेश्चंस, I am telling you only answers. Book, you can open your book and you can keep on reading the questions. It is now answer number 13. First number answer, non-current liabilities under long-term borrowings. Second number, shareholders funds under reserves and surplus. Third number, non-current assets under fixed assets, and then it is a part of tangible assets. Fourth number, current assets under OCA. OCA माने other current assets. Fourth number, current assets under other current assets. Fifth number, current liabilities under OCL. OCL means other current liabilities. Fifth number point, current liabilities under other current liabilities. Point number 6, NCA. NCA means non-current assets under fixed assets. देखिए NCA आ रहा है fixed assets के अंडर में और ये सब है आपका tangible assets के अंडर में. आंसर 14. फर्स्ट नंबर देखिए इसमें मैंने अलग अलग लिख दिया है कि मेजर हेड कौन सा है, सब हेड कौन सा है. मेजर हेड करंट एसेट्स, सब हेडिंग्स इन्वेंट्रीज. सेकेंड नंबर मेजर हेड करंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग्स अदर करंट लाइबिलिटीज. थर्ड नंबर मेजर हेड है आपका एनसीए, नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग्स हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स. फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर का रिप्लाई है आपका देखिए मेजर हेड है नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग्स है फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स. आंसर नंबर 16. फर्स्ट नंबर रिजर्व्स एंड सरप्लस, सेकंड नंबर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, थर्ड नंबर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फोर्थ नंबर फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स. देखिए फिक्स्ड एसेट्स है जो कि हिस्सा है टेंजिबल एसेट्स का. अगेन आंसर नंबर 5, फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. सिक्स्थ नंबर इन्वेंट्रीज. आंसर नंबर 17 ए पार्ट. फर्स्ट नंबर नॉन करंट एसेट्स अंडर फिक्स्ड एसेट्स, दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स. सेकेंड नंबर करंट एसेट्स अंडर ट्रेड रिसीवेबल्स. क्वेश्चन दिस इज पार्ट 17 ए. इस क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इज 17 ए. उसका थर्ड नंबर देखिए करंट लाइबिलिटीज अंडर अदर. फोर्थ नंबर करंट एसेट्स अंडर अदर करंट एसेट्स. फिफ्थ नंबर डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड्स. 17 बी.
फर्स्ट नंबर आंसर देखिए, शेयर होल्डर्स फंड्स अंडर शेयर कैपिटल टू बी शोन ओनली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सेकेंड नंबर, shareholders funds added to subscribed capital. Answer number third, shareholders funds under reserves and surplus. Fourth number, non-current liabilities under long-term borrowings. Fifth number, current liabilities under short-term provisions. Answer number 20. First number, current assets under inventories. Second number, current liabilities under OCL. OCL means other current liabilities. Third number, non-current assets under fixed assets, and these are the part tangible assets. Fourth number, non-current assets under fixed assets, intangible assets. Fifth number, current liabilities under other current liabilities. Sixth number, current assets under other current assets. Seventh number, current liabilities under other current liabilities. And now listen to your homework. You have to solve questions from 21 to 24. Homework बहुत कम है. My email ID, it is on your screen, sadhana1163@gmail.com. Students, you have to submit your homework daily by 2 PM. काम लेट मत करिएगा, समय पर भेजिएगा. Thank you so much.